Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and fine. Today we are going to start our topic verb. In the previous classes, I have covered up noun, pronoun, and now adjective also I think we have covered up. Now we are going to study about verb today. Can anyone tell me what is verb? What are verbs or what is verb? Yes, verbs are the words which tell the action, state or the existence. For example, I am teaching. Teaching over here is telling my action. You can see a slide over here. A verb is a word that expresses an action or a state. As I told you before, this definition. Now in this picture you can see drink, dream, think, meditate, jump, sing, dance, walk, whistle. So these all are the action words. Akash swims in the swimming pool. So the word swim, this word is telling the action of Akash. Now how many types of verbs are there? Do you have any idea about it? See. Verbs are classified into two categories. One is main verb and second is helping verb or auxiliaries. In the main verb, we have would, to be, am, is, are, was, were. And in primary, we have to do, does. And here it is again it is classified as modals. Shall, will, should, may, might, can, could, must, need, ought to be, dare, used to be. These comes under modals, and further we are going to study in brief about this. See, main verb. Main verb में पहला हमारा जो bullet point है, that is transitive verb. Transitive verb, this is the bullet point. Transitive verb. Transitive verb are those which take an action. For example, Arnav reads newspaper. In this sentence, what Arnav is doing? He is reading a newspaper. So this word read is a transitive verb. This word is telling the action of Arnav to us. And here you can see a picture. Helping verbs, जो helping verbs होते हैं वो हमारा जो main verb होता है उसको help करते हैं. आपको जैसे कि word से ही समझ में आ रहा होगा help. Okay? And in this sentence it is written also helping verbs help the main verb. This is the helping verb. Should is the helping verb and main is help. जो एक्शन बता रहा है वो क्या कर रहा है अपने पेरेंट्स को? ही इज हेल्पिंग एंड वी शुड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ हेल्प. ओके, yes, intransitive. First one was transitive verb and second one is intransitive verb. Intransitive verb are those which do not take any action. These are those verbs which are not having any action. In this picture, can you tell me what you are seeing? It is quite blurred, but what this baby is doing? This baby is crying aloud. Okay? So in this we have intransitive verb. The baby is crying aloud. Helping verb and auxiliary. As I told you before, we have two categories. One was primary, other was modal. And here comes the primary verbs. इसमें हमारे verb कौन-कौन से होते हैं? To be, is, am, are, was and were. This is a picture of a school. You can see here. Ram over here is a teacher. So इसमें जो primary verb है, this you can see it in a bold. This one is intransitive verb. Okay, Ram is a teacher. He was to go to the school. He was in the school.
he is a teacher and this boy is going in the school. Helping verbs. Verbs to have, has and had. ये जो हमारे have, has और had होते हैं, these are helping verbs. I have a car. मेरे पास गाड़ी है. He has got a book. उसके पास उसको एक बुक मिली. Now again verb. अब हम किसके बारे में कब बात कर रहे हैं? Do, does and did. Do come in. अंदर आ जाओ. यहाँ पे जो verb है वो क्या है? कौन सा verb आपको दिख रहा है? मैंने पहले आपको ऊपर बताया है do, does and did. तो इस सेंटेंस में ये क्या है? Do. Do is a helping verb in this sentence. Now excuse me. Modals. Let's come to the modals. As in the previous slides I have told you about the modals. An auxiliary verb that expresses necessity or possibility means हमारी necessity क्या है, हमारी जरूरत क्या है और क्या क्या संभावनाएं हैं. Possibility, the word possibility means संभावनाएं. You should regularly go for a morning walk. You should over here is necessity. हमें जाना ही चाहिए because it is good for our health. It is our necessity. हमें अगर एक्सरसाइज करने को कोई बोल रहा है तो वो हमारी जरूरत है. Nowadays as we can see कितने सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं. सो यहाँ पे जो शुड वर्ड है ये नेसेसिटी को इंडिकेट कर रहा है. एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस दे मस्ट अटेंड टुमारोज मीटिंग. दे मस्ट, उन्हें करनी चाहिए. पॉसिबिलिटी, वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट करनी चाहिए. ये पॉसिबिलिटी है, मीटिंग अटेंड करने की पॉसिबिलिटी है. Now again this here they have given the point may and might. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी होने की भी है और ना होने की भी है. एक्सक्यूज मी. इट मे माइट रेन. बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है. He may might go to Delhi tomorrow. वो जा भी सकता है मीन्स मे, माइट नहीं भी जा सकता है. तो पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, दोनों ही चीजें हैं. सी, ये जो नेचुरल, जब हम किसी भी नेचुरल चीजों के बारे में बात करते हैं तो वहां जो पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. और आप दूसरे सेंटेंस में देख रहे हो माइट गो टू दिल्ली टुमारो. इसमें यह भी हो सकता है कि वो जा ही जा सकता है, बट ऊपर वाले सेंटेंस में मे और माइट दोनों का हम यूज करेंगे. परमिशन. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बच्चा यहां से मुझसे पूछ के जाता है मैम मे आई गो टू वॉशरूम. सो इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उसे परमिशन दूंगी या नहीं दूंगी. सेम, परमिशन का मतलब यही होता है किसी से आज्ञा लेना, किसी से पूछ के जाना. मे आई कम इन. एक बच्चा मुझसे वहां दरवाजे पे खड़े होकर पूछता है मैम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ही इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम मी. यस, यू मे कम इन. तुम आ सकते हो. आई हैव ग्रांटेड हिम द परमिशन. एंड हियर यू कैन सी अ पिक्चर विच इज justifying these both the sentences. विश और प्रेयर. हम ऐसे आंख बंद करके विश मांगते हैं कभी कभी और गॉड से हम प्रेयर करते हैं. सो दे आर ऑल्सो मे एंड माइट. मीन्स इसमें भी क्या होता है, भगवान सुन भी सकते हैं और नहीं भी सुन सकते हैं. मे यू एंजॉय मैरियल हैप्पीनेस. आप अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करो. कोई अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करता है और कोई नहीं करता. कोई बड़ा कैजुअल होता है, अरे ठीक है, और कोई उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता है. मे यू लिव लॉन्ग. तुम 1000 साल जियो. ऐसे बोलते हैं हमारे दादी दादा जब हमारा बर्थडे होता है. सो इन दिस सेंटेंस मे, आप जियो, बट वी डोंट नो हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे. सो अगेन पॉसिबिलिटी ओवर हियर इज देयर. पर्पस. शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास. पर्पस. आप यहां क्यों बैठे हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटिंग हियर इन द क्लास? योर पर्पस इज टू स्टडी. Your purpose is to crack the exam, isn't it? My purpose is to teach you and your purpose is to gain knowledge from me. So यहाँ पे she works hard so that she may pass. वो क्यों work hard कर रही है?
ताकि वो पास हो सके, मतलब उसका पर्पस पास होना है, इसलिए वो वर्क हार्ड कर रही है। शी केम सो दैट शी माइट सी मी, वो इसलिए आई ताकि वो मुझे देख सके। उसका पर्पस क्या है? आने का। एक्सक्यूज मी। रिमोट पॉसिबिलिटी। Remote possibility means things which are in our hand and which are, he might be sleeping now, वो अभी सो भी सकता है। ये हमारे हाथ में है ना, सोना नहीं सोना, उठना नहीं उठना। So a remote is there in our hand, so that's why they have used the words remote possibility. वो सो भी सकता है और वो नहीं भी सो सकता है। May, might plus have, अब यहाँ पे हम may, might और उसके साथ have का यूज करेंगे। They are used to express possibilities, desirabilities relating to the past action. Means ये यहाँ पे they are expressing the possibility, कुछ भी होने की संभावना, plus desirability means जैसा वो सोच रहे हैं, relating to the past experience, पुराने experience से related। He might have failed, यहाँ पे this lady is talking to this person, he might have failed। कैसे बोल रही है वो? शायद वो पहले भी फेल हुआ होगा, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से सोच के समझ के उसके बिहाफ पे वो ये बोल रही है। सो इस सेंटेंस में हमने यही पढ़ा, डिजायरेबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस मीन्स पुराने एक्सपीरियंस से। कैन एंड कुड, एबल टू मीन्स कर सकते हैं। एबिलिटी, मॉम कैन आई बाय दिस डॉग, शी कैन राइट इंग्लिश वेल, दीज सेंटेंसेस आर है। शी कैन राइट इंग्लिश वेल मीन्स शी कैन, शी इज एबल टू, वो कर सकती है, वो कर सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, शी कैन, यहाँ पे आप कैन देख रहे हो, कैन जो वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये काम हो सकता है, इंग्लिश अच्छा लिखने का काम हो सकता है। I have been able to do this, मैं ये काम कर सकता हूँ। I am capable of doing this, so in this possibility is there, and possibility is always a positive word, जिसमें हम जब भी देखेंगे कुछ जो भी कार्य, जो भी एक्शन हो रहा होगा वो होने की संभावना होगी। Can I get water please? Polite request, could you please do it for me? क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हो? Can I get a water? Can I get a fruit from there? Can I get my tiffin? Ma'am, shall I come in? These are all polite request. ये बहुत प्यार से की गई हुई रिक्वेस्ट होती है। जहां भी could आता है वहां पे रिक्वेस्ट वाला फॉर्म आ जाता है। सी दिस वर्ड कुड यू आर सी इन द सेकेंड सेंटेंस, कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? अब क्या तुम किसी से ऐसे कहोगे, अरे मुझे पैसे दे? इज इट अ रिक्वेस्ट? नो। सो ऑलवेज देयर इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट विच कम्स विद कैन एंड कुड। Yes, next is permission and order. I have already told you about the permission. जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, क्या मैं आ जाऊं, क्या मैं चला जाऊं, this is permission। और order, sit here, stand up, go and get the water for me, these are all orders। ये सारे क्या है? orders हैं। Yes, you can go now। this sentence, ये just a second, yes you can go now, this is an example of permission। यहाँ पे वो क्या कह रही है? आपको परमिशन दे रही है। yes आप जा सकते हो। you can take my book, this is also a permission as well as we can say it a order also। okay, prohibition and offer, किसी को कुछ ऑफर करना। You cannot enter the room, prohibition means आप किसी पे पाबंदी लगा रहे हो। the word prohibition means, where is the slide? yeah, you cannot enter the room, I am restricting you to come inside the room, that is prohibition।
Can I get you some? Can I get you some fruits? I am offering. मैं fruits offer कर रही हूँ. Okay? I hope these are all very much clear to you क्योंकि काफी easy है. Prohibition, order, permission. Now possibility. Again, who is she with him? उसके साथ कौन है? She could be his wife. Possibility. Sorry. He is not clear over here कि वो उसकी वाइफ है या कौन है. हम ऐसी संभावना लगा रहे हैं कि उसकी वाइफ होगी. Could plus have. Could के साथ have का यूज देखेंगे अब हम verb में. This form is used for past stability while indicating that the action did not take place. This form is used for past stability. मतलब past में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मैं तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगी, बता दूंगी. मैं बता भी सकती हूं और नहीं भी बता सकती हूं. डिपेंड्स ऑन मी. ड्यूटी प्लस ऑब्लिगेशन. ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन मीन्स आई शुड लीव नाउ. ये मेरी ड्यूटी थी जो मैं कर रही थी और अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, सो आई शुड लीव नाउ. यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या हुआ? अब जो ड्यूरिंग ड्यूटी का जो टाइम होगा, अब ये ऐसा क्यों बोल रही है? ही इज ऑन द ड्यूटी, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग, क्योंकि टाइम हो गया होगा. इफ शी वुड हैव सेड इट बिफोर, यहाँ पे सेंटेंस में डेफिनेटली चेंज होता, सो तब ऑब्लिगेशन हो जाता. शी कैनॉट गो. फ्यूचर इन द पास्ट. आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर. मैंने उसे कहा था कि मैं वहां जाऊंगी. फ्यूचर पास्ट में. ओके, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं पास्ट में. कल मैं ऐसा कह रही थी कि मैं बाड़े जाऊंगी, मतलब मैं ये बात कल बोल रही थी कि मैं कल जाऊंगी, तो मैं पास्ट में फ्यूचर की बात कर रही थी. डिड आई नॉट टेल यू दैट आई शुड क्वालिफाई. क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी? तो हो जाऊंगी तो बाद में ही होंगी ना, बट मैं ये बात पहले ही कर रही थी. फ्यूचर की बात हम पास्ट में कर रहे थे. पर्पस, एज आई टोल्ड यू, आपका पर्पस यहाँ बैठने का क्या है? पढ़ना, और मेरा पर्पस पढ़ाने का. वॉक केयरफुली लेट्स यू शुड फॉल. अगर आप केयरफुली नहीं चले तो आप गिर जाओगे. तो योर पर्पस हेयर इज टू वॉक केयरफुली. आपको बहुत सावधानी से चलना है, अदरवाइज आप गिर सकते हो. कंडीशन. अब कंडीशन क्या है? यहां पे कंडीशन शो कर रहे हैं, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी. कंडीशन क्या है? आपको वर्क हार्ड करना ही है. क्या वर्क हार्ड का कोई सब्स्टिट्यूट है? कंडीशन यहाँ पे क्या है? वर्क हार्ड करना. अगर वर्क हार्ड नहीं होगा तो यू कैन नॉट गेट सक्सेस. शुड प्लस हैव. अभी हमने कुछ प्लस हैव पढ़ा था, अब शुड प्लस हैव. दिस फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. ये फॉर्म वर्ब की ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करती है पास्ट में. इट मे इंप्लाई टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन. मीन्स ये नॉन परफॉर्म, अगर कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस वाली कंडीशन में वी यूज टू अप्लाई दिस शुड प्लस हैव. यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर. आपको आपके ब्रदर के साथ खड़े होना चाहिए था. नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन प्लेस ऑफ शुड हम किसकी जगह पे यूज करते हैं? शुड की प्लेस पे हम ये यूज करते हैं. इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जब नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन वाली कंडीशन होती है तो हम शुड की जगह पे वी यूज दीज वर्ड्स. वर्ब, सॉरी. यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस. आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. यू मस्ट करने ही हैं बिकॉज वो इंस्ट्रक्शंस हैं. यू आर ऑब्लिगेबल फॉर दिस. आई मस्ट लीव नाउ. मुझे अब जाना होगा, ये मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा. आई कैन नॉट स्टे. ऑर्डर ऑफ द स्पीकर. अब स्पीकर, आई एम द स्पीकर, नाउ माई ऑर्डर. गेट अप, गो आउट ऑफ द क्लास. दिस इज माई ऑर्डर.
You must not leave now. तुम अभी क्लास के बाहर नहीं जाओगे. This is my order. They must not play here. ये बच्चे यहाँ पे नहीं खेलेंगे. This is also my order to you. So here we are talking about जो स्पीकर है वो ऑर्डर दे रहा है. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब हमें बहुत ज्यादा ही लगता है कि ये चीज होगी ही होगी. It is 10. The teacher must be in the class. अब 10 बज चुके हैं, टीचर क्लास में होगी ही होगी. ये हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा सोचा. क्यों? क्योंकि शायद पहले वाले जो डेज होंगे उसमें टीचर 10 बजे तक क्लास में होती ही है, इसीलिए दे आर सेइंग इट इज 10, सो टीचर मस्ट बी इन द क्लास. शी मस्ट वर्किंग इन द ऑफिस नाउ. वो अभी ऑफिस में काम कर रही होगी. ये हमें जो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे आती है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से. डिटर्मिनेशन, आई मस्ट हेल्प हिम, आई मस्ट गो टू रन डेली, आई मस्ट गो टू स्कूल डेली. मतलब जब हम बहुत ज्यादा डिटरमाइन होते हैं, कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे, मुझे उसको हेल्प करना ही है. वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड. हमें रूल्स फॉलो करने ही है. जब मैं सिग्नल रेड होगा तो मैं वहां रुकूंगी ही रुकूंगी. देर आर पीपल जो निकल जाते हैं, बट मेरा डिटर्मिनेशन क्या है? आई विल नॉट ब्रेक द रूल्स. डिडक्शन एंड इंटरफेरेंस. डिडक्शन एंड इंटरफेरेंस. डिडक्शन मीन्स किसी भी चीज में कटौती करना, और इंटरफेरेंस दखल अंदाजी करना. He has a big house, he must be rich. वो उसका बड़ा घर है और वो बहुत ज्यादा रिच है. मतलब इन्होंने कैसे अंदाजा लगाया कि वो रिच है? क्योंकि उसका घर बड़ा है. She reads a lot, she must be learned. वो बहुत ज्यादा पढ़ती है तो वो उसको सब कुछ याद हो गया होगा. मस्ट के साथ अब हम हैव का यूज करेंगे. दिस फॉर्म इज यूज फॉर अ पास्ट एक्शन. ये हम पास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं जब मस्ट और हैव. और सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस, और उन सिचुएशंस के लिए जहां पे एक्शंस परफॉर्म नहीं होते हैं. यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शंस. आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए होंगे. होंगे नहीं होंगे, होंगे. Here is a must, मतलब किए ही होंगे. You must have left them. तुमने उन्हें छोड़ा होगा. Definitely छोड़ा ही होगा. Must मतलब करना ही है. Sorry students. ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, जब हमारा कहीं पे कोई दायित्व होता है, कहीं हमारी मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं. इट इज नॉर्मली यूज फॉर शुड एंड मस्ट. ये हम नॉर्मली शुड और मस्ट के लिए यूज करते हैं. देयर इज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी. जब हमारी कोई भी बहुत ज्यादा जब हम मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, हम गलत काम कभी नहीं करेंगे. एडवाइस और इंडिकेटिंग ऑफ करेक्ट एक्शन, और हम हमेशा करेक्ट एक्शन ही करते हैं क्योंकि हमारी मॉरल ड्यूटीज आ गई यहाँ पे. तो ऑब्वियसली उसमें हम वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग. You out to serve your motherland. आपको आपकी मदरलैंड को सर्व करना ही है. ये मदरलैंड को सर्व करने का मतलब कैसे हमारे अंदर ये डिटर्मिनेशन आया? बिकॉज वी हैव गुड मॉरल वैल्यूज एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉरल वैल्यूज ओनली. आउट टू प्लस हैव. अब हम किसकी बात करें? आउट टू और हैव की. This construction is used in relation to past action. Again, इस form of construction of sentence में हम past की ही बात कर रहे हैं. Of duty that was not fulfilled. वो duty जो fulfill नहीं हुई थी, or an action that was neglected, और उस action की जो past में neglect हो गया था. Okay? You ought to have taken care of your wife. तुम अपनी wife की care करने के लायक हो. यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ. अब वर्ड आया है यूज्ड टू. जब हम पास्ट की बात करते हैं, यूज्ड टू हम कब यूज करते हैं? मैं ऐसा करती थी, मैं वॉक करने जाती थी, मैं ये खाना खाती थी. पास्ट में ये सब करती थी.
to donate habitual action or the past routine of the subject. As I told you, past में जो होता है तब हम used to use करते हैं. He used to go to Delhi by car. वो कार से दिल्ली जाया करता था. वो पुराने टाइम में कार से दिल्ली जाया करता था. He to donate discontinuous action. He used to play hockey. वो हॉकी खेला करता था. Again past action. Used to is also used as an adjective और हम used to को as adjective भी use करते हैं. He is used to getting up early. वो जल्दी उठा करता था. Here in this sentence we are using it as an adjective. would का इस्तेमाल कब होता है? Would you please help my son? बहुत जब हम पोलाइटली बोलते हैं किसी से. अब आपको किसी से हेल्प चाहिए तो ऐसे तो बोलोगे नहीं, ए मुझे हेल्प कर. Will you speak like this? No. When we are going to speak, we are going to do a polite request. She told me that she would give me money. उसने मुझे कहा था वो मुझे पैसे देगी. यहाँ पे भी we are talking politely. Need and need not. जरूरत और जरूरत नहीं. Need can be treated as an auxiliary or an ordinary verb. जो need है उसको हम auxiliary और ordinary verb की तरह भी यूज कर सकते हैं. Excuse me. He needs to work hard. उसे work hard करना है. Need I write to him. मुझे उसके लिए लिखना है. Need not plus have. अब need not means no need is there. This form is used for an action which was not necessary but was performed. जो जरूरी नहीं था लेकिन वो perform हो गया. Which was not necessary but perform हो गया. You need to have gone there. तुम्हें वहां जाना था. There. किसी को चैलेंज देना, किसी को डेयर देना. It can be treated as an auxiliary verb. It is used mainly in the negative and interrogative forms with direct infinite. Means हम हमेशा इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं या फिर किसी चैलेंज के रूप में, किसी क्वेश्चन मार्क. हमें पता नहीं होता है सामने वाला वो कर पाएगा या नहीं, बट हम उसको वो डेयर दे देते हैं. She dared her sister to touch her. उसने अपनी बहन को ये डेयर दिया, तुम मुझे छू के दिखाओ. So this is a dare. So this was the last one. I hope you have understood all the verbs, all the forms of verb. And for this topic, I'm going to do some. I'll make you do some exercises also. Because अभी मैंने सिर्फ टॉपिक को कवर अप किया है. वर्ब इज वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक है ये. यू हैव टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स which is there on my YouTube channel. You can go through it and please do share and subscribe. Thank you, students.